Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. So today we're going to discuss certain problems that the CLAT consortium needs to rectify as soon as possible in order to make sure that more and more people actually rely on the CLAT exam, because what happens is every year a lot of aspirants, I would say thousands of aspirants, work really hard for this exam. They sometimes have to manage a lot with their 12 board exams. Some people even drop a year or two for this particular exam in order to do well and become lawyers and study from some of the best universities in the country when it comes to law. Now the problem is that the exam that is conducted every single year has so many irregularities attached to it that people generally do not trust the exam. And there are certain other problems, so I'm going to highlight 7 major problems that CLAT consortium needs to keep in mind to be able to make sure that people are more willing to write this exam and become lawyers of tomorrow. Now the first problem that has been seen since a lot of years, at least 10 years now, is that the difficulty level of the paper is very, you could say, irregular. तो 2014 में I wrote in 2015, ठीक है, 2014 में क्या हुआ था, the paper was quite simple. उस टाइम पर there was no consortium of NLUs जैसे अभी है. It was the old CLAT pattern, तो particular national law universities paper set करा करती थी. तो 2014 में since the paper was quite easy, वहाँ पर एक थोड़ा सा criticism हुआ था कि पेपर ज़्यादा ही easy हो गया and we need to set certain standards for the paper. 2015 में वो स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा हाई कर दिए गए कि जिस कॉलेज की कट ऑफ किसी टाइम पर 148 to 150 हुआ करती थी आउट ऑफ 200, वो सीधे 100 पर आ गई बिकॉज द पेपर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. टिल डेट क्लैट 2015 इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन क्लैट एवर. ठीक है, तो क्लैट के 15 पेपर हो चुके हैं अभी तक, उसमें से क्लैट 2015 हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस पुराने ईयर के कैट एग्जाम से और पता नहीं कहां से इधर उधर से पूछ लिए थे. उसके अलावा 2016 में जब वापस से पेपर हुआ, बिकॉज 2015 में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था, स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू सॉल्व इट, यू नो, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर क्रिएटेड. तो 2016 इज द इजीएस्ट पेपर इन क्लैट हिस्ट्री टिल डेट. तो ऐसी इतनी सारी इनकंसिस्टेंसीज की वजह से क्लैट इज नॉट पॉपुलर अमंग अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, और यू कुड से अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. Now, second major problem is the irregularity with the questions that they ask. Now, what does it mean is, हर साल आप देखोगे क्लैट के पेपर में ओवर द लास्ट 10 years कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो गलत आए हैं. एवरी सिंगल टाइम इट हैपेंस. नाउ दिस इज नॉट द प्रॉब्लम कि क्वेश्चन गलत आया तो उसको तो कई बार क्लैट कंसोर्टियम ना या फिर कोई जो पुरानी जो क्लैट कमिटीज बनती थी या नेशनल यूनिवर्सिटीज होती थी वो उस क्वेश्चन को हटा दिया करती थी. अब इसमें क्या चीज नहीं समझ आ सकती हमको इस, फॉर एग्जाम्पल अभी जो नया पैटर्न है उसमें एक मैथ्स का क्वेश्चन गलत आ रहा है. तो अगर वो मैथ्स का क्वेश्चन गलत आ रहा है तो वो क्वेश्चन गलत आने पर जो मैंने टाइम वेस्ट किया है उस क्वेश्चन पर, दैट इज नॉट अकाउंटेड फॉर. अगर मैंने उस क्वेश्चन पर 10 मिनट वेस्ट कर दिए है, मेरा पेपर 120 मिनट्स का है जिसमें मुझे 150 क्वेश्चंस करने हैं और वो 5 क्वेश्चन बाद में हट ही जाते पेपर से, नो इट इज अ लॉस ऑफ 10 मिनट्स फॉर मी. दैट इज नॉट अकाउंटेड इन दैट. सो इट सिर्फ 150 क्वेश्चंस की बात है. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि पेपर में कोई भी क्वेश्चंस ना गलत हो. साल में एक ही बार पेपर हो रहा है और अगर उसमें भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं कई सारे हर साल, then we need to have a check on this as well. Third major concern under the new pattern, particularly that the new CLAT consortium has set from the year 2020, is the difficulty level of English in the paper. I mean, I understand that English एक important language है when you're studying law, but यहाँ पर सिर्फ English पर इतनी ज़्यादा heavy reliance that somebody from a, you could say, a tier 1 city from a good school have a clear advantage of doing well, whereas somebody who wants to work hard, who wants to do really well after going to a law college, or you could say during the preparation as well, do not get that same opportunity because the level of English, it's very difficult to improve it to that extent, जिस extent की English पूछी जा रही है पेपर में. Because my NLU journey says that there have been a lot of people who came from absolutely Hindi background, or you could say the regional backgrounds, and they did absolutely great in college. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे who came from one of the best background, the elite backgrounds as we call it, but they did absolutely garbage in college. So these are two kinds of people. So you just can't decide entrance stage पर ही कि इतनी मुश्किल इंग्लिश रखते हैं so that एकदम elite बच्चे ही इस कॉलेज में जाएंगे and they will become the lawyers of tomorrow. That is not the reason why these national universities have been created. They have been created to impart the best kind of legal education and to provide an equal opportunity to every aspirant who is sitting for the exam if he or she is working hard. एक और बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म, जो फोर्थ क्रिटिसिज्म की मैं आपसे बात करूंगा, जो हमेशा हाईलाइट किया जाता है, इज द एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है. आप देखते हो क्लैट का जो फॉर्म भरने की फीस है दैट इज 4,000 रुपीज. अब इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 4,000 रुपए फीस नहीं है,
इसके अलावा एक और NLU है विच इज NLU दिल्ली विच कंडक्ट्स हिज ओन एग्जाम कॉल्ड ALET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी अलग से 3,500 रुपए फीस है। और कुछ अलग अलग यू कुड से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के एग्जाम है, सो लेट्स नॉट काउंट दैट। लेकिन क्लैट और ALET अगर आपको सिर्फ दो ही एग्जाम, जो 2 मेजर एग्जाम देने, तो आपको 7,500 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे जस्ट फॉर फिलिंग दी फॉर्म्स। वेरेज अगर आप बाकी नेशनल लेवल एग्जाम से कंपेयर करें, व्हेन यू कंपेयर इट विद नीट एग्जाम, उसकी मुश्किल से 1,500 रुपए फीस है। अगर आप IIT से कंपेयर करें तो IIT की 1,500 से भी कम फीस है, राइट? तो दिस काइंड ऑफ गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल दी स्टूडेंट्स टू बी एबल टू राइट दी एग्जाम, टू बी एबल टू डू वेल, टू बी एबल टू प्रिपेयर। आज 7,500 रुपए अगर मुझे एग्जाम की फीस ही देनी पड़ेगी, then it is slightly difficult for me to take this decision and write this exam, because it is a lot of money and everybody cannot afford it as well. Fifth concern or another major concern is the lack of instructions to the people जो कि एग्जाम सेंटर्स में इन्विजिलेटर्स होते हैं। हमने बहुत बार देखा है ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल से वो 5-10 मिनट इतना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देयर आर सम इन्विजिलेटर्स जो क्वेश्चंस के जो यू वुड से इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर जो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो पढ़ने का भी आपको टाइम नहीं देते, वो 120 मिनट्स में उसको इंक्लूड कर देते हैं। वेल देयर आर सम इंस्ट्रक्टर्स और या फिर सम इन्विजिलेटर्स जो आपको पढ़ने का टाइम देते हैं। अब ये 5 और 10 मिनट का जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना, दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन समबडी हु न्यू ऑल द आंसर्स बट कुडंट डू इट एंड रैन 5 to 10 मिनट शॉर्ट, और वो स्टूडेंट या वो एस्पिरेंट जिसने वो क्वेश्चन उस टाइम में कर लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इन्विजिलेटर्स और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज या जो भी क्लैट के सेंटर्स है, they need to be trained really properly and all of them need to be given one uniform instruction with respect to everything with the conduct of the exam, because students are suffering because of this and it is becoming extremely difficult for them. Now before moving on to the next point, अगर आप मेरे पहले 5 पॉइंट से एग्री हुए हैं तो अगले 2 पॉइंट में pretty sure कि शायद आप एग्री करेंगे। Please share this video as much as you can, because this is something that the CLAT consortium also needs to hear. उनको ये बात जानी चाहिए। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू बी मेकिंग श्योर कि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी क्लैट कंसोर्टियम के मेंबर के पास पहुंचे और हमारी ये जो पर्टिकुलर बातें हैं, जो कुछ लेजिटिमेट डिमांड्स है, इनको क्लैट कंसोर्टियम सुन पाए। Another point, or the sixth point that the CLAT consortium needs to keep in its mind is increasing the number of test centers across the country. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं that they have to travel for more than 500-600 kilometers just to write this exam. बड़े बड़े स्टेट्स में 2-2, 3-3, कई जगह सिर्फ 4-4, इतने कम टेस्ट सेंटर्स हैं that it is very difficult. बेसिकली ये एक्सक्लूड कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली एग्जाम लिखना चाहते हैं, बट बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल सो मच, ये एग्जाम नहीं हो पाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि क्लैट कंसोर्टियम जो है दैट इज नॉट वेरी एम्पैथेटिक व्हेन इट कम्स टू द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल। लाइक वी अंडरस्टैंड कि क्लैट कंसोर्टियम को जल्दी से जल्दी एग्जाम करा के काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करके एडमिशंस देने होते हैं। अभी जैसे मैं आपको 22 का एग्जाम्पल देता हूँ, 16 जून को 12th बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, एग्जाम रख दिया 19 जून को। नाउ दिस इज जब स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम खत्म करेगा, यू नीड टू गिव दैट पर्सन सम अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस, राइट? यू नीड टू गिव देम एटलीस्ट 10 days or 15 days to be able to get back into the groove, get back into the examination preparation mode and be writing that exam. So we need to be really sure कि यहाँ सिर्फ एग्जाम हर साल कराना नहीं है. We have to understand the demands of the student as well as to what do they want as well. Now the seventh point and very important is हम over the years देखते आ रहे हैं कि क्लैट में ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं बैठते हैं, राइट? अभी 80,000 के आसपास हो गए, बट दैट इज नथिंग एज कंपेयर्ड टू सम अदर नेशनल लेवल एग्जाम्स इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू से IIT or you could say NEET and various other exams. The reason behind this is that people are not aware about law as a profession. यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है बिकॉज जनरली हमारा जो लॉ एज अ प्रोफेशन की अवेयरनेस है ना वो मूवीज से आती है, जहाँ पर सनी देओल खड़ा होकर तारीख पे तारीख या फिर कोई भी अलग अलग लॉयर्स कुछ बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? एक केस जीत जाता है, जनरली हीरो होता है वो जीत जाता है, तो सबको वही है कि एवरीबडी विल वियर अ ब्लैक रोब, गो टू अ कोर्ट, आर्ग्यू. कई लोगों को दिखता है कि देयर इज नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लॉ वेयर इन वी हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. इतने सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं व्हेन यू डू लॉ. अब when we have CLAT consortium arguably has the most bright legal minds in the country. अगर ये लोग पब्लिक फोरम में आकर if these people do not make those people aware कि आपके बच्चे को क्यों CLAT लिखना चाहिए, क्यों उसको लॉ में एंटर होना चाहिए, and not just for the parents, even for the students. Most of the students have absolutely no idea as to what are the opportunities they will have in the legal arena. So it is the duty of the CLAT consortium to be making sure that people are writing this exam in large number and we get really bright lawyers of tomorrow. So these were the 7 demands, and I think if you guys agree with it, please share it as much as you can. I'm repeating it again and again because it is extremely important for it to go to the CLAT consortium as well.
Other than that, that's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us, keep following us like this. Thank you so much.